Very good morning, students. How are you all? I hope by now you have started studying and making your notes. But to make your notes, you have to buy your books first. So it's high time. If anybody hasn't bought their books are available in the market. खरीद लो भाई, क्योंकि नोट्स बनाने हैं अब. सिविक्स के 2 चैप्टर्स हो गए हैं. ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट टू फिनिश and next we'll start with history first chapter. So it's high time you all bought your books and start making notes. Coming back to the lesson, we were studying about soil as a resource. During last class, we have studied that soil is a living system, it has life, how soil is made. It takes many years to make a thin layer of soil. Everything, all the growth that it takes place in the soil. So it's very important to have soil fertility, life in the soil. Then coming to India, studying about India, the various types of soil found in India. We have studied about 2 most important soil, that is alluvial soil and black soil. Alluvial soil is considered as the most fertile soil as it comes down with the water coming from the mountains and settles in northern plain. उसके बारे में नोट्स लिखना, कहाँ मिलती है, कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या लैक करती है. देन अबाउट ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल के और नेम्स हमने पढ़े थे. कॉटन सॉइल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल इज़ कॉटन. कहाँ कहाँ मिलती है, हाँ, कौन से मिनरल से बनी है. यहाँ तक हमारी कल की क्लास थी. नाउ मूविंग forward with the same topic, various soils found in India. The next type of soil that is found is red and yellow soil. Red soil develops on crystalline igneous rocks. किसके breaking up से बनती है, क्या है parent rock इसका? Igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern states of the Deccan Plateau. They are also found in Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and Piedmont zone of the Western Ghats. So these are the areas where red and yellow soils are found. Now most important, underline करो इसे. These soils develop a reddish color. Red और yellow soil का color red क्यों है? Due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. क्योंकि इसमें small particles of iron mix होते हैं, so that those particles they give red color to this soil. And when it is in hydrated form, water हो जाता है बहुत, then it appears yellow. So red color is due to iron particles. That is red and yellow soil. Next soil is lateriite soil. फिर अंडरलाइन करो इसे. Lateriite has been derived from the Latin word later, which means brick. तो lateriite soil gets its name from brick. Again imagine, और brick कौन से कलर की होती है? Brick is also red in color. तो it's somewhat again red in color. The laterite soil develops under कौन से एरियाज में? Tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. जहाँ पर रेन्स भी बहुत होती हैं और गर्मी भी बहुत होती है. In those areas we find laterite soil. और इंडिया में ऐसे कौन से एरियाज हैं? You can check out in that map. इंडिया का जो हमारा सॉइल का मैप है, वहाँ उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है. And I also told you to make that map in your register. इंडिया का मैप बनाकर और एरिया वाइज वो जो सॉइल है वो बना लेना. This soil is the result of intense leaching due to heavy rains. और जब बहुत तेज़ बरसात आती है और ये मिट्टी कैसे कहते हैं, धुलाई होती है या बह जाती है ना, that is laterite soil.
Laterite soils are mostly deep to very deep. Deep to very deep मतलब अर्थ में बहुत अंदर तक होती हैं. एसिडिक इन नेचर होती हैं. इनका pH लेवल 6.0 से भी ज़्यादा होता है. जनरली डेफिशिएंट क्या नहीं होता इनमें? प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना. तो बहुत कम प्लांट्स ग्रो होते हैं, स्पेशली वेजिटेशन, एंड अकर मोस्टली इन southern states, western Ghats and regions of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast regions. These are the areas where laterite soil is found. Where these soil support, है ना. और ग्रोथ क्या क्या है देखो यहाँ पे. You cannot grow crops in this soil. तो इसमें ज़्यादातर डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो हो रहे हैं. इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस, लेकिन बहुत कम वेजिटेशन होती है और सेमी एरिड एनवायरनमेंट होता है. इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर. तो बहुत कम इसमें ह्यूमस कंटेंट होता है. इरोजन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो चुका है तो सॉइल इरोजन होता है बहुत ज़्यादा, और डिग्रेडेशन भी हो चुका है बिकॉज इट लैक्स ह्यूमस. आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, अगर हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपना, इफ यू वांट टू ग्रो क्रॉप्स इन दीज सॉइल, कौन सी सॉइल है ये? लेटरियाट सॉइल. इफ यू वांट टू ग्रो क्रॉप इन दिस लेटरियाट सॉइल, वी नीड टू अडॉप्ट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स. और उसकी हेल्प से, बाय अडॉप्टिंग दीज टेक्निक्स in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, now tea and coffee is grown. टी और कॉफ़ी स्पेशली इसमें ग्रो हो रही है बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन टेक्निक्स. सॉइल में पहले अच्छी मैन्योर वगैरह मिक्स की जाती है एंड देन टी एंड कॉफ़ी इज़ ग्रोन. इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, cashew nut is also grown in this soil. So this is laterite soil. The next soil we have is arid soil. What is arid soil? Dry, जो हमारे राजस्थान में मिलती है, स्पेशली desert area. Arid soils range from red to brown in color. Underline करो इसे. कौन कौन से कलर की होती है? From red to brown in color. They are sandy in texture. What is the meaning of sandy in texture? रेतीली होती है. And saline in nature. A lot of salt content is present in it. और कहीं तो common salt भी लिया जाता है इस soil में से by evaporating water. ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, इसलिए इसमें से इवापोरेशन बहुत तेज़ होता है. एंड दिस सॉइल ऑल्सो लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. दैट इज़ वाई इट्स सैंडी इन टेक्सचर. सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है बिकॉज इट लैक्स मॉइस्चर. लोअर हराइजन्स ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर because the increasing calcium content downwards. As we dug this soil, lower horizon means जैसे जैसे हम इस soil को dug out करते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, ये कंकड़ इसमें मिलते जाएंगे बहुत ज़्यादा. कंकड़ नोड्यूल्स आर फाउंड इन इट, क्योंकि जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं अंदर अर्थ में मॉइस्चर कम होता जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो वाटर and because it has soil content, salt content in it, तो कंकड़ are formed as we go deep inside this soil. This कंकड़ layer in the bottom horizons restrict the infiltration of water. That is why that area is dry. क्योंकि जो कंकड़ की लेयर है इसमें सॉइल में, जैसे जैसे हम खोदेंगे अर्थ को, एक कंकड़ की लेयर आ जाती है. और ये जो कंकड़ की लेयर है, हाँ, ये कैल्शियम कंटेंट होता है, बहुत हार्ड लेयर है ये. इट स्टॉप्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ. पानी को अंदर नहीं जाने देती. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन these soils become cultivable. तो देखो, अगर हमें कुछ ग्रो करना है एरिड सॉइल्स में, if we want to grow anything,
सो अगर प्लांट क्या होता है, हम ऊपर से भी पानी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे गेट वाटर इनसाइड द अर्थ, फ्रॉम इनसाइड द अर्थ ऑल्सो, बिकॉज दीज सॉइल्स लैक दैट वाटर, अंडरग्राउंड वाटर. सो इफ वी वॉन्ट टू ग्रो एनीथिंग इन दिस सॉइल, अगर हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं या स्पेशली क्रॉप्स ग्रो करने हैं, सो प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स नीड टू बी अडॉप्टेड, देन ओनली दे बिकम कल्टिवेबल, है ना. और जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि ऊपर से इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड इंदिरा गांधी कैनाल देयर, एंड विद दैट वाटर विच इज वी आर टेकिंग फ्रॉम दैट कैनाल, cultivation is done in those areas. So next we come is forest soil. जो last soil है इंडिया में available, that is forest soil. These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforest are available. Forest soil are specially found on माउंटेनियस एरियाज, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट है. एक्चुअली फॉरेस्ट सॉइल का अनदर नेम इज़ माउंटेनियस सॉइल. तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, माउंटेनियस एरियाज में मिलती है. द सॉइल टेक्सचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फाउंड. एज वी क्लाइम अप द माउंटेन, सॉइल का टेक्सचर भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये सॉइल चेंज होती जाती है. दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स नियर द रिवर्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स. नदी के पास का जो एरिया होता है वहाँ पर तो इट इज़ सिल्टी इन नेचर. एक्चुअली सिल्ट बहुत होता है इस सॉइल में, और जैसे जैसे हम रिवर वैलीज से दूर जाते जाते हैं इट बिकम कोर्स, बहुत हार्ड ये सॉइल होती जाती है, एंड इट ऑल्सो लैक्स मॉइस्चर, सो नथिंग कैन बी ग्रोन हियर. एंड इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज these soils experience denudation and are acidic with low humus content. और जैसे जैसे हम snow covered as we climb up the mountains और स्नो कवर्ड एरिया के पास पहुंच जाते हैं, तो इनमें कटाव बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर, एंड बिकॉज दे लैक ह्यूमस, सो दे आर एसिडिक इन नेचर. तो इन स्पेशली माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल में नो क्रॉप्स कैन बी grown because they are also acidic in nature. The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. और सिर्फ वही फॉरेस्ट सॉइल जो रिवर्स के पास प्रेजेंट है वहाँ बस थोड़ी बहुत फार्मिंग होती है, अदरवाइज रेस्ट स्पेशली माउंटेनियस एरियाज में है तो फॉरेस्ट आर ग्रोन इन दीज सॉइल. जो क्रॉप के लिए हमें फर्टिलिटी चाहिए, फॉरेस्ट सॉइल लैक्स दैट फर्टिलिटी. तो अ स्मॉल फार्मिंग इज़ डन, बहुत कम एरियाज़ में या बहुत कम फॉरेस्ट सॉइल पर फार्मिंग या एग्रीकल्चर किया जाता है, क्रॉप्स ग्रे किए जाते हैं, एंड दैट टू ऑल्सो नियर द रिवर वैलीज, बस वहीं पर जहाँ फ्लोइंग वाटर है. अदरवाइज रेस्ट फॉरेस्ट सॉइल में मोस्टली माउंटेन्स पर only the forest are grown. That is why this name is given forest and mountainous soil. So with this we complete our various types of soil that are found in India. Again I am telling you children, वो एक बार मैप अच्छे से पढ़ना, जो आपकी बुक में सॉइल मार्किंग की गई है वो मैप अच्छे से पढ़ो. सॉइल सारी मैंने आपको समझा दी हैं, एक एक सॉइल पर नोट बनाओ. अलूवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेट्रियार्ड सॉइल, सब पर नोट्स बनाओ. कौन से एरियाज़ में मिलती है, कौन से क्रॉप इसमें ग्रो हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है. वी डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा मैटर. वॉट एवर अबाउट द सॉइल इज़ गिवन इन योर बुक, यू हैव टू राइट दैट ओनली इन योर नोट्स. किसी कोई मिनरल लैक कर रहा है, सम इज एसिडिक इन नेचर, किसी में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस सॉइल्स. सो मेक नोट्स बाय राइटिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. तो ये सारे सॉइल के नोट्स आप कंप्लीट करो, वो सॉइल वाला मैप उसको स्टडी करो.
यू मस्ट बी नोइंग कौन से एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है. एक लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है आपका इस लेसन का, दैट वील कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप स्टडिंग.